Welcome to my channel Theta Classes. As you know, my name is Engineer Muhammad Kammar Raza and this is my profile. You can check. Okay, तो अब तक हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ लिया है. एज यू नो क्या क्या पढ़ लिया है, एक बार आइए फिर से हम थोड़ा सा रिफ्रेश हो लेते हैं. हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया है, ठीक है. उसके बाद हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देख लिया है रेशियो रिलेशनशिप का. उसके बाद स्पेशल एंगल का देख लिया है हमने, ठीक है. उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना. और देन हम लोगों ने देखा था आइडेंटिटीज, है ना. आइडेंटिटीज को कैसे प्रूव करते हैं. देन आफ्टर वी हाँ, देन आज न्यू चीज़ हम लोग पढ़ेंगे. लेट्स व्हाट वी स्टडी टुडे. आवर टॉपिक नेम इज हाइट एंड डिस्टेंस. You may be ever heard in your school or maybe most of them you already read it, but here let's see. Okay. Let's see. Actually, क्या हो गया भाई. हाँ, एक्चुअली हम लोगों ने अब तक जो ट्रिग्नोमेट्री को देखा है, we studied trigonometry, trigonometric ratio, relation of ratios, angles, relation between trigonometry ratio and right angle triangle sides, all the things we seen in our past videos. But here is a question arise: what is the application of trigonometry? Why we study trigonometry? Okay, na? Theta, angle, what is this? This is all a homo. You just see what are you doing, what are you doing, just theta angle, theta angle, theta angle, है ना. But what is the actually application of trigonometry? We just studies today application of trigonometry. क्या पढ़ेंगे हम लोग? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे. अब समझ में आएगा कि ट्रिग्नोमेट्री का असली यूज क्या है. एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मीन्स यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना. काफ़ी चीज़ों में ये मेमेज बनते रहती है. हाँ, ये कोस थीटा पढ़ा था, कहाँ यूज होता है. एक्चुअली उन्होंने जब पढ़ा था तभी उन लोगों ने उसका एप्लीकेशन नहीं पढ़ा था, है ना. बट वो मूर्ख है, दे आर फूल, डोंट नो द एप्लीकेशन, ठीक है. देयर आर मेनी एप्लीकेशन एंड वन इज height and distance. Okay, what is height and distance? The word itself defined height and distance. Height and what is height? Height is the measurement of an object. Distance is the difference between two object. This is the word itself defined height and distance. What is that? Okay, so you can say for finding a height of an object, for finding distance of an object from the another point, we have to use our trigonometry ratios relations. Okay, let's see. आज आपको मैं अब तक मैं आप लोगों को जो जितना भी चीजें पढ़ाया था, तो मैंने काफी कम नोट्स दिया है, लेक्चर भी काफी कम दिया है ना. मैंने सिंपली वे में आप लोगों को हर चीज बताता था और आप लोगों को एग्जाम्पल कराता था. एक्चुअली ये चैप्टर में थोड़ा सा मुझे आप लोगों को नोट्स देना होगा, क्योंकि अगर हम नोट्स नहीं देंगे देन यू विल हैव प्रॉब्लम इन फ्यूचर, ठीक है. तो ये चैप्टर थोड़ा सा हेक्टिक है, थोड़ा सा टफ है कंपेयर टू आवर प्रीवियस चैप्टर. दिस चैप्टर इज समथिंग टफ. एक्चुअली नॉट टफ, this is upon our understanding, what we understand, what we not understand in our previous lecture. That is depend on that. Okay, actually friend,
some students are bored, feel bored in mathematics, and some are enjoying mathematics. Who enjoy? They enjoy height and distance and trigonometry. Who don't like mathematics, they also don't like trigonometry, obviously. Uh, so I think if you are here, then you may enjoy. You may enjoy, and you after the lecture, you definitely enjoy this chapter. Let's see how you will enjoy this chapter. Let's see. First, our first point is height and distance. Okay, and please uh, keep notes. Okay, keep notes. All the things you should have to note. Okay, and I also upload the notes of this lecture in our description link. You can download, but I always prefer you that you should note your notes by self, not take printout or PDF format. This is not a good habit for you. Please please always try to write. If you not habit to write, then you will face a problem in your examination, in your uh, different types of competitions. You feel problem. Then why not you just write? Please write. You have to habit to write your notes by self, not in PDF or in other formats, document format or printout. Okay, let's see. Height. Of the main application of trigonometry, one of the main application of trigonometry is to find the distance between two or more than two places, or to find the height of the object or the angle subtended by an object at a given point without actually measuring the distance of height or angles. Trigonometry is useful to astronomers, navigators, architects, and surveyors in solving problem related to height and distance. लेट्स सी एक्चुअली क्या है कि हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है कि हमें विदाउट मेजर किए हुए हमारे पास बिना स्केल का ही मेरे पास स्केल नहीं है एंड विदाउट मेजरिंग we can find the height of an object, we can find the distance of 2 points with thus related subtended angle. ओके, एंगल से हमें उसका डिस्टेंस मिल जाएगा, उसकी हाइट पता चल जाएगी ऑब्जेक्ट की, हाँ, बगैर मेजरमेंट किए हुए. ठीक है कि किसी पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट की क्या डिस्टेंस है कि और किसी ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, ये हम बिना मेजरिंग किए हुए भी ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं कि अगर कोई चीज है तो उसके साथ उसका एंगल होता है और उस एंगल से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि हाइट क्या होती है, क्या है ऑब्जेक्ट की, और डिस्टेंस किसी पॉइंट से उसकी क्या है. ठीक है, एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री इज यूज, ये हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका यूज एस्ट्रोनॉमर करते हैं. हाँ, जैसे कि एस्ट्रोनॉमर जाते हैं अंतरिक्ष में, जाते हैं वो यूनिवर्स में, हाँ, तो उनका डिस्टेंस कैसे है. देखो एक्चुअली क्या होता है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं होता तो यू कैन से चांद की दूरी क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, यू कैन नेवर फाइंड. हाउ यू मेजर यू हैव टू स्केल दिस मच स्केल, नहीं ना, इतना स्केल तो नहीं है ना मेरे पास. तो एस्ट्रोनॉमर ने कैसे इसके बारे में जाना कि इसकी डिस्टेंस क्या है, मून की डिस्टेंस क्या है अर्थ से, और सन की डिस्टेंस क्या है. तो वो पता किए इस हाइट एंड डिस्टेंस यानी ट्रिग्नोमेट्री की मदद से. कैसे पता किए कि लाइट ये उसका लाइट ऑफ साइड जो है उससे पता किए. ठीक है, चलिए आगे आप लोग पढ़िएगा तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा. बट ये समझ जाइए कि चांद की दूरी अगर मिली तो कैसे मिली. ठीक है, ठीक है फ्रेंड. चलिए स्टूडेंट, लेट्स सी हियर. हाइट एंड डिस्टेंस, द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्क्राइब बाय मेजरिंग. कैसे मेजर कर सकते हैं हम लोग? एंगल ऑफ एलिवेशन की मदद से कर सकते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन की मदद से कर सकते हैं. एक चीज है, मेरे वीडियो को देखने वाले काफी स्टूडेंट
हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे और स्टेट बोर्ड के जो भी स्टूडेंट होंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट हिंदी मीडियम के होते हैं। तो वो लोग ये ना समझे कि सर सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ही पढ़ाते हैं, इंग्लिश में नोट्स दिए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। और मैथमेटिक्स में लैंग्वेज से कोई बात ही नहीं है, मैथमेटिक्स में लैंग्वेज की कोई बात नहीं है, ये साइंस नहीं है। मैं इंग्लिश में आपका लेक्चर दे रहा हूँ तो आपको हिंदी वालों को प्रॉब्लम होगी, नो नो, मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो हिंदी में ही बोलता हूँ, बट ना इंग्लिश वालों को दिक्कत है, इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत है, ना हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसको हिंदी बता देना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने कभी सुना नहीं होगा। व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, यू नेवर नो। हाँ, बट आप लोगों ने जरूर ये चीज सुना होगा। क्या सुना होगा? उन्नयन कोण। देखिए मेरी हिंदी थोड़ी खराब है, एक्चुअली खराब नहीं थी, मैं भी तो हिंदी मीडियम का ही स्टूडेंट था किसी समय, हाँ, बट अब हो गई है क्योंकि काफ़ी सालों से हाँ हिंदी इतनी लिखता नहीं हूँ। लेट्स सी, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन को क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं अवनमन कोण। क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, और आगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन ही बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बोलेंगे, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, लेट्स सी, चलिए आइए देखते हैं। ये कुछ बकवास चीज़ें हैं, मतलब मैंने कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे, डिप्रेशन क्या है, उसकी कुछ हिस्ट्री है जो मैंने डाल दिया, आप लोग पढ़िएगा। चलिए हम लोग डायरेक्ट अपने थ्योरी पे आते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। ठीक है, आप एक चीज समझिए कि मान लीजिए कि ये जो है मेरा ये ए जो है, ठीक है, इसमें एक काम कीजिए, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए बी, और ये पॉइंट है ओ। ठीक है, ये जो मेरा ए बी जो है, एक क्या है? एक वॉल है। ठीक है, और वॉल क्या होता है? एकदम स्ट्रेट खड़ा होता है ना? स्ट्रेट होता है ना, एकदम सीधा। ठीक है, और ओए है जो, ओए जो है मेरे जमीन से जुड़ा हुआ है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये जमीन से जुड़ा हुआ है एज लाइक। ठीक है, यानी इसको समझिए बेस है आपका। ठीक है, बेस है। और ये देखिए कि एक आदमी है वो, ठीक है, और उसकी जो आई है यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हम अज्यूम करते हैं कि मेरा जो आर्क है वो बेस में है, हाइट जो मेरा दीवार है उसके बेस के साथ एक डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। ठीक है, ये ठीक है, तो ये बेस है और ये हाइट है। क्या है? ये हाइट है। ठीक है, और ये मेरा बेस है। और ये जो और लेट्स सी यहाँ पे एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बी, ठीक है, जिसको वो अपने यहाँ वो उसका ये मान लीजिए वो किसी पर्सन का आई है, उससे वो बी को देख रहा है, उससे क्या है? बी को देख रहा है। तो वो जो देख रहा है, तो बी उसके आई और बी के बीच में एक लाइन बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, और वो लाइन क्या कहलाएगी? लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी वो लाइन? लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज अंडरस्टैंड क्लियरली। फ्रॉम द आई एंड द ऑब्जेक्ट, हाँ, हम लोग क्या बनाते हैं? क्या बनता है? लाइन ऑफ साइट बनता है। इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। अब देखिए, लाइन ऑफ साइट जो मेरा लाइन है, लाइन ऑफ साइट, एंड जो मेरा बेस है उसके साथ जो एंगल बन रही है, एंगल बन रही है ये, जिस मतलब जो आप पर्सन अपने आई से जो देख रहा है, वो उसका जो बेस के बेस लाइन के साथ जो उसका एंगल बन रहा है, हम उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हिंदी में हम कहते हैं उन्नयन कोण। फिर एक बार मैं बता देता हूँ, मैं बार बार इसको नहीं बताऊंगा, आप लोग इसको खुद समझिएगा, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट। ठीक है, हाँ, उस एंगल को कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। लाइन ऑफ साइट क्या है? इट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। देखिए यहाँ पर जो पर्सन है वो ऑब्जर्वर है, क्योंकि वो देख रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है चीजों को, ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग लाइन ऑफ साइट। ओके, ऑब्जर्वर को नहीं बोलेंगे, वो ऑब्जर्वर और जो पॉइंट को देख रहा है उसके बीच जो लाइन बन रही है, लाइन ऑफ साइट, उसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। ओके, चलिए
तो मैं आता हूं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट समझिए, देखिए इस चीजों को अच्छे से समझिएगा। अगर आपने समझ लिया कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, लाइन ऑफ साइट क्या है, यू डेफिनेटली सॉल्व मेनी क्वेश्चन विदाउट एनी knowledge. Just prior video knowledge you can solve many question. Okay, तो देखिए इसको अच्छे से समझिए, प्लीज अंडरस्टैंड। ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ थ्योरी दे दिया है, आप लोग इसको लिखिएगा, ठीक है, इसको क्या कीजिएगा, लिखिएगा, आप लोग जरूर अपने नोट डाउन कीजिएगा अपने नोट्स में, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब। क्या है, लेट पी बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन ओ ए, ठीक है, ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्या बेस हॉरिजॉन्टल, देखिए ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, आप लोग इसको समझिए। और ये क्या है, मेरा वर्टिकल लाइन है, ठीक है, काफी जगह ये वर्ड आएंगे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, एंगल ऑफ एलिवेशन, लाइन ऑफ साइट, तो इन चीजों का आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, हाँ, तो ओ ए एंड ओ बी द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, देन एंगल ऑफ ए ओ पी इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिफरेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिफरेशन ए ओ पी, अच्छा, मैं फिगर, हाँ यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर इस वाले में देखिएगा आप लोग, ठीक है, ये एक वॉल है, ओके, ये एक वर्टिकल वॉल है, क्या ये वर्टिकल है, और ये एक्चुअली क्या है ना, यहाँ से पूरा आया नहीं है ये, इसको आप मिला दीजिए, ठीक है, यह एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर P एक पॉइंट है, ठीक है, सॉरी P यहाँ पर पॉइंट है, और ये जो है एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है, लेट्स सी। अब ऑब्जर्वर कहाँ है, ऑब्जर्वर है दीवार पे, यानी छत पे, मान लीजिए ये छत है, ये टेरिस है, टेरिस पे है, और जो मेरा पी पॉइंट है, ठीक है, जो मेरा एक पॉइंट है P, वो ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है उसको, तो आई के बीच में जो ये बनेगा, और पॉइंट, जिस पॉइंट को हम आई देख रहा है, उसके बीच में एक लाइन बनेगी, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, सेम चीज है, ठीक है। अब देखिए, तो सेम चीज, तो अब देखिए, तो ये इसका जो आई है, आई क्या होता है, आई जब भी सीधा देखेगा, ठीक है, वो जब सीधा देखेगा तो एक सीधा लाइन जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा, तो यही स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो उसका स्ट्रेट लाइन से और उस लाइन ऑफ साइड के बीच जो एंगल बनता है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको अवनमन भी बोलते हैं, अवनमन कोण, ठीक है, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर, लेट्स सी, अगर मेरा ऑब्जर्वर यहां होता, ठीक, हम यहां से यहां देख रहे होते, ठीक है, तो ये जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, बोलते हैं ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं इसको। अब एक चीज देखिएगा, आप लोगों ने थ्योरम पढ़ा होगा, जेड एंगल पढ़ा है, जेड एंगल बिल्कुल पढ़ा है, ठीक है, तो जेड एंगल में क्या होता है, ये एंगल इक्वल होता है ना, बिल्कुल होता है। तो देखिए, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ठीक है, तो ये चीज को आप लोग समझिएगा। तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाती है, क्या, मेरा आंख जो बना सीधा जो हम देखते हैं, जब स्ट्रेट देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाती है ऑलवेज, ठीक है, तो इसको समझिएगा अच्छे से। चलिए, अब इस चीज को देखिए, ये आपको ज्यादा अच्छे से समझा पाएगी। हाँ, देखिए यहाँ पर ये क्या है, एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस क्या होता है, स्ट्रेट होता है ना, वर्टिकली स्टैंड होता है जमीन से, ठीक है, तो ये जो वर्टिकली स्टैंड होता है, तो इसके पास क्या होगा, कोई हाइट होगा, ठीक है, इसके पास एक हाइट होगा, ऑब्वियसली ये हाइट होगा,
और देखिए कोई भी चीज जो स्ट्रेट वर्टिकल खड़ा होता है, हाँ, तो वो जमीन जो होता है, मेरा जो सरफेस होता है उसकी सॉरी, उसके साथ क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्या बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। आप इस एक्चुअली इसको मत देखिएगा, इस लाइन और इस लाइन को मत देखिएगा, ये तो डिजाइन है, ठीक है, ये वर्टिकली खड़ा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके साथ क्या बना रहा है, ये एंगल ऑफ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब एक चीज देखिएगा कि यहाँ पर देखिए, लेट ओ एच बी द हॉरिजॉन्टल लाइन एट द आई लेवल, ठीक है। यहाँ पर मतलब कोई आदमी खड़ा है, यहाँ पर कोई है जिसका आई के साथ क्या है, हॉरिजॉन्टल का अति बनेगा, उसके लेवल, आंख के जो मेरा लेवल होता है उसके ठीक, मतलब हिंदी में अगर समझे तो सीधे बोलते हैं उसको, सीध में यानी स्ट्रेट में, हाँ, सामने एकदम वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा इफ ए पर्सन एट ओ लुक एट एन ऑब्जेक्ट पी, ठीक है। तो यहाँ पर कोई पर्सन है जो कि पी यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, बोट है, तो इसको देख रहा है, ठीक है। तो इस पर्सन के आई और इस पॉइंट के बीच में एक लाइन बनेगा जिसको क्या बोलेंगे, देखिए इनविजिबल लाइन बनता है, ये चीजें आपको प्रैक्टिकली दिखेगी नहीं, मतलब ये होता है, ठीक है। आप लोग फिजिक्स पढ़ते हैं उसमें पढ़े होइएगा, ठीक है। तो ये सब चीज बनेगी, तो ये जो बनेगी, तो ये एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइट जो है, कि लाइन ऑफ साइट और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनेगी उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक्चुअली देखिए स्टूडेंट काफी इसमें कंफ्यूज होते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो इस चीजों को कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल समझना अच्छे से, ठीक है। तो चलिए, और एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब चलिए, अब आप लोग बताइए, यहाँ पे ये इस फिगर को देखिए, ये एक क्या है, ए बी एक टावर है, तो टावर है तो ऑब्वियसली ये वर्टिकल होगा और ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा सरफेस के साथ, और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर का क्या होता है, ऑब्जर्वर का जो आई है, आई लेवल पर जो लाइन बनता है उसको क्या, वो हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा ऑब्वियसली, इसको बेस भी बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। और ऑब्जर्वर पॉइंट ए को देख रहा है, टावर के ऊपरी हिस्से को देख रहा है, ठीक है। तो जब ये जो देखेगा तो इस लाइन, ये लाइन को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट, ठीक है, लाइन ऑफ साइट बोलेंगे, ठीक है। अब बताइए इसमें यहाँ पे जो कोण बनेगा, एंगल बनेगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे, बताइए। तो काफी लोगों ने बिल्कुल सही बताया होगा। एक्चुअली रिकॉर्डेड वीडियो तो पता नहीं चल रहा, लाइव होता तो पता चलता। चलिए, तो इसको बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। क्यों बोलेंगे, क्योंकि हम नीचे से देख रहे हैं ऊपर, है बस समझना। अब चलिए, अब देखिए पहले ऑब्जर्वर, ये देखिए एक टावर है, ठीक है। पहले ऑब्जर्वर यहाँ था, ठीक है, और फिर वो मूव कर गया, ठीक है, और वो यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ से जब वो पॉइंट डी को देख रहा था तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन, देखिए हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही लिखेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा था 30 डिग्री बन रहा था, लेकिन जब वो नजदीक आ गया टावर के तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि हम जितना ही नजदीक होंगे, ठीक है, मान लीजिए कि ये टावर है, ये टावर है, क्या है, टावर है। तो हम जितना ही नजदीक होंगे, हम टावर के जितना ही नजदीक आते जाएंगे, मान लीजिए हम यहाँ थे, फिर यहाँ है, यहाँ है, ऐसे करते 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 नजदीक आएंगे। तो जितना ही नजदीक हम टावर के आते जाएंगे, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ते जाएगा। क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है, बढ़ते जाएगा। तो ये यहाँ पर मान लीजिए अगर 30 डिग्री है तो यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा, मे बी, ये हम जस्ट लेट अज्यूम, ठीक है। तो बढ़ेगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है। और जितना ही हम दूर जाएंगे, अगर हम जैसे यहाँ थे, अगर लेट्स सी, अगर यहाँ से हम यहाँ आ गए रहते
तो यहाँ से अब वो देखते हैं इस चीज़ों को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाता और कम हो जाता, तो मे भी हो सकता था ये 20 डिग्री हो जाता। ठीक है, तो इन चीज़ों से आपको लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये फिगर में काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझाया। इस फिगर को देखिए, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, इस फिगर को देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए एक्चुअली क्या होता है, आप लोगों को सन को देखा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग चलते थे बादल को और सन को देखते थे, तो हम लोग कहते थे ना, अरे मेरे साथ साथ ये सन भी चलता है, ये बादल भी मेरे साथ साथ ही चलता है, हम जहां जाते हैं वहां आ जाता है, हम जहां जाते हैं वहां आ जाता है। तो एक्चुअली सन नहीं चलता है। ठीक है, वो सन नहीं चल रहा है, हम जहां जा रहे हैं वहां वो नहीं आ रहा है, बल्कि मेरा लाइन ऑफ साइट और मेरा जो आई लेवल के बीच का जो एंगल है वो बदल रहा है। हम देख रहे हैं उसको, लेकिन वो बदलते जा रहा है, और फिर भी हम उसको देख रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि हम वो मेरे साथ साथ ही चल रहा है। ठीक है, तो जैसे कि हम जितना ही करीब आते हैं, ठीक है, चीजों के, तो वो हमको बड़ा दिखने लगता है, हम जितना ही दूर जाते हैं तो हमको छोटा दिखने लगता है ना। चलिए, तो आप लोग समझ गए होंगे काफी चीजें। तो आप लोग को समझ में आ गया एंगल ऑफ क्या चीजों को समझना है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये दो चीजों को काफी अच्छे से समझना है। तो एक्चुअली मैं जरा देख लेता हूँ टाइम कितना हुआ। ट्वेंटी 27 मिनट हो गई। काफी मतलब 3 ही देने में काफी समय लग गया। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल को देखते हैं। एक्चुअली ये 2 वीडियो आएंगी इस चैप्टर पे, और ये आपका लास्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। ठीक है, ये आपका लास्ट चैप्टर है। हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं अभी, और बाकी कुछ एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एक्चुअली देखिए, क्वेश्चन में कुछ चीजें आप क्लियर करता हूँ। जब आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा तो लाइन, जैसे कि आप एक लाइन देख लिए, एक सेंटेंस को कंप्लीट पढ़ें, जैसे ही सेंटेंस को पढ़े उससे आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उस इंफॉर्मेशन को आप रफ कीजिएगा, मतलब कि उसका फिगर में ड्रॉ कीजिएगा। अगर आप लोगों ने जो क्वेश्चन है उसके इंफॉर्मेशन से फिगर ड्रॉ कर लिया एकदम सही, तो आप समझिए कि 90% काम कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपका फिगर सही बन गया तो। अगर आपका फिगर सही नहीं बन रहा है तो यू कैन नेवर फाइंड योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये 4 चीजों में लोग काफी कंफ्यूज होते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। वर्टिकल का मतलब क्या होता है, वो सीधा मतलब खड़ा। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज, लेट्स सी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ है, चलिए कॉल वगैरह आ गई थी इसलिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। ए वर्टिकल टावर इज 2√3 मीटर हाई एंड, ठीक है, पहले इतना इतना को देखिए। ए वर्टिकल टावर, टावर क्या है मेरा, जो कह रहा है वो काम कीजिए। ठीक है, टावर मेरा क्या है, वर्टिकल। ओके, और उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज 2 मीटर। ठीक है, इसका जो शैडो बन रहा है, और ये कितना है, 2√3 इसका हाइट है। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, इसका हाइट कितना है, 2√3 है।
और इस टावर का शेडो, मान लीजिए कि यहाँ पर सन है, ठीक है, लेट्स सी, हाँ तब ना इसका हाइट बनेगा। तो इसका जो शेडो बनेगा इधर बनेगा, ऑब्वियसली इधर बनेगा। और वो क्या बनेगा, देखिए मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया, ठीक है, अच्छा बनाने के चक्कर में खराब ही कर दे रहा। लो क्या कर दिया मैं, लेट्स सी, ये टावर है, ओके, और इसका शेडो है, ठीक है, इसका शेडो है, ओके। और हाँ, ये मान लीजिए कि ये जो मेरा है ए बी, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये क्या है, टावर है, और इसका हाइट कितना है, 2√3 है, ठीक है। फिगर के चक्कर में टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, ज़्यादा फिगर पर फोकस नहीं करूँगा, सिंपली रफ करूँगा, अच्छा फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये पेन, टैप पेन पर लिखना है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, एक्चुअली मैं लेफ्ट हैंडर और जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत होती है। चलिए, और इसका जो शेडो बन रही है वो कितना है, 2 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है, 2 मीटर है, ठीक है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ होगा, हाँ, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, और ये सोर्स ऑफ लाइट बोल रहा है, ठीक है। तो अभी हम आपको जो थ्योरी दिए थे उसमें बताए थे, क्या बताए थे कि, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ होता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा मेरा वो यहाँ होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसको मान लीजिए कि ये थीटा है और ये पॉइंट सी है, तो यहाँ पर देखिए कैसे बनेंगे, लेट ए बी इज ए टावर, ठीक है, एंड बी सी इज शैडो ऑफ द टावर, ओके। उसके बाद अब देखिएगा, तो ऑब्वियसली ये जो क्या है 90 डिग्री होगा, आप लोग को पता ही, बताने की जरूरत है नहीं, लेट, ठीक है, लेट एंगल ऑफ एलिवेशन, और एंगल ऑफ एलिवेशन इसमें कौन सा होगा, बी सी ए होगा, है ना, बी सी ए, एंगल ऑफ बी सी ए, ठीक है, इक्वल टू थीटा। तो अब देखिए, इसलिए हम लोग जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू हाइट, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो इसमें परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए बी बाई, अब बेस इसमें क्या होगा, बी सी, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल टू, ए बी का कितना है, √3 है, 2√3, और बी सी कितना है मेरा, 2 है, ठीक है, ए भी मीटर में, ए भी मीटर में, ये भी चीज़ आप हमेशा देखिएगा कि दिया किस में, कभी कभी क्वेश्चन में एक चीज़ मीटर में, किस सेंटीमीटर में दे देता है, और लड़का उसी को पुटअप करके बाहर निकाल देते हैं, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल कन्वर्ट करना होगा किसी एक में, कि अगर सेंटीमीटर में दिया, एक मीटर में दिया, तो किसी एक को, तो दोनों को मीटर में ही रखिए या दोनों को सेंटीमीटर में रखिए, इट्स अपॉन यू, ठीक है। अब लेट्स यहाँ पर देखिए, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2√3 का मतलब क्या था, 2 इंटू √3, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया, टेन थीटा इक्वल टू √3, तो टेन कितना का मान होता है, √3, 60 का मान होता है, इसलिए थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं।
और देखिए एक एक क्वेश्चन को और देख लीजिए, उसके बाद मैं आप लोग को आज छोड़ दूंगा और कल बाकी चीजें हम लोग कल से देखेंगे। क्या बोल रहा है, ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्ट्रॉन्ग वाइंड। एक ट्री था जो कि टूट गया, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये मेरा एक ट्री है, थोड़ा सा और बड़ा कीजिए क्योंकि ट्री थोड़ा बड़ा, यार क्या, मान लीजिए ट्री है, ठीक है। और ड्यू टू स्ट्रॉन्ग वाइंड एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड टू द टॉप ऑफ द ट्री टच टू द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ट्री जो क्या है, सरफेस में, सरफेस के साथ इसका जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। अब मान लीजिए ट्री जो टूटा है तो ये क्या बोल रहा है, ब्रोकन पार्ट बेंड टू द टॉप ऑफ द ट्री, यानी ये टूट करके और यहाँ से टूटा था, ठीक है, यहाँ से टूटा था और ये क्या हुआ, ये टूट करके जमीन से टच कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जमीन से टच कर रहा है, ठीक है। और कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ग्राउंड से, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो यानी 8 मीटर है, यहाँ ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट बी है, यहाँ से यहाँ का जो दूरी डिस्टेंस है 8 मीटर है, ठीक है। उसके बाद देखिए व्हाट वाज द हाइट ऑफ द ट्री। तो हमको हाइट निकालना है किसका, ट्री का। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या बोला, व्हाट वाज द, ठीक है। यानी इसका कंप्लीट हमको पता करना है कि कितना होगा। मान लीजिए ये जहां से टूटा है, ये पॉइंट मेरा क्या है, ए, और ये जो पहले जो मेरा था वो था सी। तो इसको मान लीजिए ए और सी के बीच के जो मेरा है, इसको हम एक्स मान लेते हैं, एक्स मीटर, ठीक है। और ए बी का वैल्यू हम देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखिए ऐसे कुछ समय ही ट्रिग्नोमेट्री काम आती है, बिना कोई मेजरमेंट किए हुए हम लोग इसका हाइट निकाल सकते हैं, अगर ट्री टूट भी गया है तो भी। चलिए लेट BC was the tree and AB is new height of tree after break, ठीक है। ब्रेक होने के बाद ये नया हाइट AB है, ठीक है। अब ये चीज देखिएगा, ये जितना होगा x मीटर, ए और सी भी, इसको डी मान लीजिए भैया, डी मान लीजिए, ए और सी भी क्या हो जाएगा मेरा x मीटर हो जाएगा, क्योंकि हम उसके x माने हैं, ठीक है। लेट ब्रोकन पार्ट इज x मीटर, ठीक है, ब्रोकन पार्ट x मीटर। तो नाउ अब देखिए पहले हम क्या करते हैं, x मीटर का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये चीज देखिएगा, ये जब में थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। ये कहीं दिया नहीं है पूरे क्वेश्चन में, लेकिन आपको खुद से ये समझना है कि इसे परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है, ये कौन है, और न्यू हाइट मेरा क्या है, ये h है। तो हमको कंप्लीट हाइट निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ बेस और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन होता है, किसका रिलेशन होता है, कॉस का रिलेशन होता है और सेक का रिलेशन होता है। तो किसी एक से निकालिए, तो कॉस से निकालते हैं हम लोग, तो कॉस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC बाई AC, बिल्कुल होगा। अब कॉस 30 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2। कॉस 30 का मान जो होता है वही साइन 60 का मान होता है। ये देखिए वो चीज आपको याद होना चाहिए,
√3/2। अगर याद नहीं है आपको तो आप एक बार चार्ट में जाकर के देख लीजिए, मैंने जो पढ़ाया था। ठीक है, √3/2। BC का वैल्यू कितना है? 8 मीटर। और वो AC वैल्यू कितना है? x। अब इसको आप जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? x √3 इक्वल टू 8 × 2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू 16√3। ठीक है, कितना हो जाएगा? 16√3। तो x का वैल्यू इतना आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब आगे देखिए। अब देखिएगा नाउ, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, ABC में अब मुझे इसका निकाले। अगर मैं AB का वैल्यू निकाल लूंगा तो x का तो वैल्यू आ चुका है, तो मुझे हाइट की कंप्लीट हाइट मिल जाएगी। ठीक है, तब देखिए क्या हो जाएगा। तो ये देखिए, ये क्या परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो परपेंडिकुलर बेस में क्या रिलेशन होता है? किसका होता है? tan का होता है। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू AB/BC। ठीक है, तो tan 30 का वैल्यू आप लोग को पता होगा क्या होता है? 1√3। तो इसका क्या हो जाएगा? 1√3 इक्वल टू AB का वैल्यू कितना है? कुछ नहीं, AB तो निकालना ही है। और BC का वैल्यू कितना है? 8। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखिए क्या हो जाएगा। AB मेरा क्या हो जाएगा? अब इसको क्रॉस में जब मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो AB√3 इक्वल टू हो जाएगा 8 × 1। और ये जब हो जाएगा तो AB आपका आ जाएगा 8/√3। ठीक है, तो इसलिए हाइट ऑफ कंप्लीट ट्री इक्वल टू कितना कितना हो जाएगा? AB प्लस AD, इसको बड़ा डी मानिए, AD है ना। तो AB का वैल्यू मेरे पास कितना हो गया? 8√3। AD का वैल्यू मेरे पास कितना है? x का वैल्यू कितना आया है? x का वैल्यू मेरे पास आया है यहाँ पर 16। ये देखिएगा, यहाँ पर आया ना 16√3। तो उसको आप पुटअप कीजिए, प्लस 16√3। तो ये कितना हो जाएगा? 24√3। तो एक काम कीजिएगा, इसको आप √3/√3 आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? 24√3/3। जब इसको आप ये कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 8√3 मीटर। तो आपका ट्री का हाइट कितना आ गया? इतना मीटर आ गया। √3 का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में। इतना पर भी आप लिखिएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। अगर √3 का वैल्यू अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आप √3 का वैल्यू कैलकुलेट कर करके, जैसे कितना होता है 1.732 ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब आगे से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, काफ़ी एग्जाम्पल है, तो ये कल हो जाएगी। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा थ्योरी चूँकि ज़्यादा दिए हैं तो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो मैं और ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि आप लोग को इसको समझना जरूरी है। अगर इसको अच्छे से समझ गए तो भी प्रॉब्लम में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, एज यू नो, अगर अभी भी आपको कोई डाउट है नेक्स्ट क्लास से पहले ही अगर पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, इस पे आप मुझे मेल कर दीजिए theta-class@gmail.com पे। हाँ, मैं आपको कल की क्लास में आपका सलूशन आपका जो भी क्यूरी होगी मैं उसको कर दूंगा। ठीक है, और